Good morning, everyone. Welcome to the class. We are doing very important session today. This class is for Public 2025, and if you are preparing for this examination, so please be on that platform because I'm going to give you every important information related to this examination. But today video, we are going to discuss about some important questions related to your history part. So in this video, I'm going to discuss each and everything which you have to study about your history because if you score very good, then only you can take admission in Presidency College, right? So let's get started. And in this video, I'm going to discuss about all type of question in history. But before I explain everything, I'm going to show you the question paper of 2024 history, which is important. Okay. So let's get started. I hope you like the video. And if you like the video, just click on a like button. So guys, start करते हैं आज का class. And in this class, we are starting with question number 1. Let me show you the question number 1. Yes. Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? Kalhan and Raj Tarangini, Ashoka and Buddhism, Kanishka I and Kalidasa, Dharampal and Nalanda. Now, if you can correct one of these, so you have to know all important part, like all options you it should be clear in your mind that what is connected with every options. For example, what is Raj Tarangani? Raj Tarangani is a book. It's a book related to Kashmir. Kashmir is very renowned place in the 11th century. And during that time, there is a famous person or the famous poet Kalahan who has written about the history of Kashmir in Ras Tarangini. So this is matched. Okay. Then Ashoka and Buddhism. As you know, after the Kalinga battle, Ashoka emerged Buddhism as a religion. Right. So this is also connected. Kanishka I and Kalidasa. Kanishka I is the Indo-Greek ruler and Kalidasa was a poet who belongs to Gupta dynasty. ओके क्योंकि ये गुप्ता डिनेस्टी से कनेक्टेड है सो हाउ कैन दे कनेक्ट ये एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं सकते दोनों का टेन्योर बिल्कुल अलग अलग है ओके तो दिस इज द राइट आंसर नाउ व्हाट अबाउट धर्मपाला एंड नालंदा नालंदा भी एक आप कहेंगे कि ये भी तो अलग है बिकॉज नालंदा इज नॉट कनेक्टेड विद धर्मपाला बट आई एम सेइंग इट इज कनेक्टेड व्हाई बिकॉज धर्मपाला इज द मैन हु renovate Nalanda University. ठीक है because Nalanda University made by Kumar Gupta, the ruler of Gupta dynasty. Okay, Kumar Gupta was the ruler of Gupta dynasty, but Dharampala renovate Nalanda dynasty or Nalanda University. It is a very famous university and still this is working. I hope you know everything about this. Okay, Nalanda University. Okay, I hope every option is clear now. Let's move on to the question number 2. Excellent cave painting of Mesolithic age are founded. So, Mesolithic age. We have three important ages of our stone that is Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Lithic means stone. Okay. So, Mesolithic, Paleolithic and Neolithic. So all these periods is important and you have to know about some important site which is belong to these different time period. So in this question they are asking about Mesolithic cave painting site. So options are Bhimbetka, Mahishadal, Kalibangan and Ataranji Kheda. If we talk about the cave painting then Bhimbetka is very important site. Okay, Bhimbetka. भीमबेटका केव आपका कहाँ पर है सिचुएटेड ये आपका एमपी में है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सो भीमबेटका इज द रॉक शेल्टर्स एंड दैट आर द फुट हिल्स ऑफ द विंध्यन माउंटेन्स दैट इज इन एमपी ओके जहां पर केव पेंटिंग मिलता है नाउ व्हाट अबाउट कालीबंगन सिचुएटेड नियर बाय विच प्लेस कालीबंगन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइट
इट इज इन राजस्थान एंड मोस्ट फेमस साइट ऑफ आईवीसी। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे फायर आल्टर्स यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कालीबंगन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी किसने किया, और फायर आल्टर्स यहाँ पे फेमस है, पोट्री के लिए फेमस है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको कालीबंगन में मिला है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अतरंजी खेड़ा, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, so this is also important site, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक फेमस साइट है बिकॉज यहाँ पर आप कुषाण पीरियड का भी बहुत कुछ टूल्स मिलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो रिवील्ड मेनी एविडेंसेस विच इज ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम अराउंड 2000 बीसी टू 200 बीसी। तो काफी टाइम पीरियड से रिलेट करता है अतरंजी खेड़ा, एंड many tools which is connected with hunting and farming is also found from this site. Okay, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। देन महिषादल, महिषादल इसके साथ एक और वर्ड हमेशा कनेक्ट रहेगा, महिषादल राजबाड़ी, ठीक है, विच इज वेरी फेमस प्लेस ऑल्सो, महिषादल राजबाड़ी। ओके, और ये कनेक्टेड है रथ यात्रा फेस्टिवल से, रथ यात्रा फेस्टिवल। ओके, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये लोकेशन आपको मिलेगा। सो इस तरह से ये चारों इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो देवर आस्किंग अबाउट मेसोलिथिक एज का केव पेंटिंग साइट, जो दैट इज अ भीमबेटका। ओके, okay, next question, question number 3, which of the following is not one of the three jewels of Buddhism? Very very important question, and these questions are always connected with every examination। जब भी बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। सो थ्री ज्वेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर किससे कनेक्टेड नहीं है, इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, बुद्धा, धम्मा, अहिंसा या फिर संघ। तो थ्री ज्वेल जो है उसका मतलब क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। थ्री ज्वेल्स, ट्रिपल जेम्स, थ्री रत्ना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो थ्री ज्वेल्स में आपका कनेक्ट होता है, एक तो होता है आपका अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, सॉरी, अहिंसा नहीं होगा, ये तो पूछा गया कि कौन सा नहीं होगा, तो अहिंसा नहीं होगा, आंसर तो ये है। क्या होता है, बुद्धा, संघ एंड धम्म, ये तीन इंपॉर्टेंट धर्म, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ पे धर्म होना चाहिए था। अगर जहां तक मुझे लग रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन को ड्रॉप आउट किया गया हो, बिकॉज ये धम्मा नहीं है, धम्मा इज कनेक्टेड विद अशोका, ठीक है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद थ्री ज्वेल्स, और अहिंसा इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्री ज्वेल एज वेल, क्योंकि बुद्धा, संघ और धर्म, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स कनेक्टेड विद द three ratna or three jewels। Okay, so that is not a dharma, that is not a dhamma, that is dharma। Okay, these are the three jewels। इसके अलावा भी बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बट अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो एज यू नो आई हैव ऑलरेडी टेकन द क्लास फॉर मगधा डायनेस्टी, ठीक है, जहाँ पर पूरा मैंने क्रोनोलॉजी आपको समझाया है। बट यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो मगधा डायनेस्टी स्टार्टेड विद हरियंक, ठीक है। हरियंक डायनेस्टी सबसे पहला डायनेस्टी है जो एज अ परमानेंट रूलर वहां पर आता है। और कौन रूल करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले रूल करता है बिम्बिसार, ठीक है। द फर्स्ट रूलर वाज बिम्बिसार एंड ही वाज फ्रॉम, okay, he was from Haryanka dynasty, Bimbisar। Then his son Ajashatru, Ajashatru, okay, then his son Udyan। So these are the three important ruler connected with the Haryanka dynasty। After Haryanka, next important ruler were Nanda, okay, Shishuna, after Haryanka, Shishuna,
then Nanda, then Maurya. So where are the option? Where is 4, 2, 1 and 3? 4, okay, 4, 2, 1 and 3. Option D. Option D is the right answer. हर्यंक, देन आते हैं शिशुनाग, लास्ट जो रूलर होता है उसको हटाकर, ठीक है, रूल करता है शिशुनाग फ्रॉम 413 बीसी से, और शिशुनाग को ओवरथ्रो करते हैं लास्ट में उसके जो नेक्स्ट आएंगे, और देन आएंगे नंदा डिनेस्टी। नंदा डिनेस्टी को के बाद आता है मौर्यन रूलर। मौर्यन रूल के बारे में आपने मौर्यन एम्पायर एक पूरा सेपरेट वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। दीज़ ऑल 4 इन डायनेस्टीज़ आर इम्पोर्टेंट। शिशुनाग का आपको सिर्फ़ इतना भी अगर पता हो कि हू वाज़ द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। Next question, question number 5. Why did Megasthenes divide Indian society into 7 classes instead of usual 4? So I think this question was very easy because ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका पैटर्न आप जितना समझ में आ रहा है, अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अच्छे से कर लेते हो और कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हो, मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, देन you can get a very good score in update examination. Okay, but उसके लिए आपको क्लासेस में कंटिन्यू आना होगा। So they were asking, why did Megasthenes divide Indian society? Who was Megasthenes? Megasthenes क्यों कौन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई टेल यू इन वेरी शॉर्ट कि मेगास्थनीज इज अ ग्रीक एम्बेसडर, एक ग्रीक एम्बेसडर है। तो एज यू रिमेंबर अबाउट सिकंदर, ठीक है, तो व्हेन अलेक्जेंडर रिटर्न टू हिज प्लेस, तो उसका लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, बट आफ्टर हिज रिटर्निंग वो क्या करता है कि अपने जो गवर्नर छोड़ के यहाँ पर जाता है, जो ऑफिसर्स, जो बाद में ऑफिसर्स छोड़ के जाता है, जो उसके विनिंग एरियाज के ऊपर रूल कर रहे होते हैं, उसमें से एक पर्सन है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का बैटल होता है चंद्रगुप्त के साथ, ठीक है, और चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी से है, ही वाज द विनिंग पार्टी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो विनिंग पार्टी है, जब वो जीत जाते हैं तो अपने कोर्ट में वो आने के इनवाइट देते हैं मेगास्थनीज को, एंड मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, ही वाज द डिप्लोमेट आल्सो। सो ही हैज रिटन अ बुक, और बहुत ही फेमस बुक है, दैट बुक नेम इज इंडिका। तो इन दैट बुक ही मेंशन अबाउट 7 क्लासेस इंस्टेड ऑफ 4 क्लासेस। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि 4 क्लासेस है, हम लोग क्या जानते हैं कि 4 क्लासेस हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बट इंडियन सोसाइटी को मैगस्थनीज ने 4 क्लासेस में नहीं, 7 क्लासेस में जो है मेंशन किया है। व्हाई ही डिड सो, तो वो ही हमें यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है, शॉर्ट में बताया, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैगस्थनीज कौन है और उसने 7 क्लासेस में क्यों किया है, वो हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज देयर वाज proliferations of caste. B, Megasthenes included outcaste. C, he was confused. और D, he divided society into main occupational groups. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्रीक है, तो दे नेवर बॉदर अबाउट दी कास्टिज्म एंड ऑल। तो वहां पर भी क्या होता था कि वर्क के हिसाब से और द ऑक्यूपेशंस के हिसाब से जो ग्रुप्स थे वो डिवाइड हो जाते थे। तो डिवाइडेड हो गया था सोसाइटी ऑक्यूपेशनल ग्रुप में, इसीलिए मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में काउंट किया, ना कि 4 क्लासेस में। ओके, let's move on the next question, question number 6. Who was the founder of the Kanva dynasty? So in every video I'm going to discuss about 10 important questions, 10 questions. So you just let me know how many question you have done correct, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करके दीजिएगा। और इफ यू वांट सम मोर मॉक टेस्ट, सम मोर क्वेश्चंस, और फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द कन्वा डायनेस्टी? अब कन्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? सुशर्मन, विष्णु शर्मा, वसुमित्रा और वासुदेवा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कन्वा डायनेस्टी से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फाउंडर से ही रिलेटेड आता है। कन्वा डायनेस्टी हुआ, शिशुनाग डायनेस्टी हुआ, ठीक है, और शुंग डायनेस्टी हुआ, ये सारे जो डायनेस्टीज हैं इसके बारे में आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसका जो फाउंडर है वो कौन है? सुशर्मन, वासुमित्रा, विष्णु शर्मा या फिर वासुदेवा। द राइट आंसर इज वासुदेवा। ठीक है, तो 73 बीसी की टाइम में ये रूल कर रहा था कन्वा डायनेस्टी फॉर फॉर मिनिमम टाइम टू सम इयर्स ओनली। ठीक है,
और कन्वर डिनेस्टी बहुत फेमस है। इसे कैपिटल इनका जो है पाटलिपुत्र में रहा है, ठीक है। और ये क्लेम करते हैं कि भाई ये ऋषि कण्व जो थे उन्हीं के फॉलोवर हैं, इसलिए इन्हें कण्व ऋषि से कहा गया है। और इन्हें लास्ट में कौन हरा देता है? इन्हें डिफीट करते हैं सातवाहना। सातवाहना क्वेश्चन हमेशा आता है। सातवाहना का फाउंडर कौन है? सातवाहना के फाउंडर है सिमुका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following monasteries was not founded by the Pala king? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाला हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी शुड प्राउड ऑन अवर पाला रूलर्स बिकॉज ज्यादातर इनका जो फोकस था एजुकेशन पे भी रहा है और एग्रीकल्चर पे भी रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्री है जो पाला रूलर्स ने ओपन किया था। हमें बताना कि उन्होंने कौन सा फाउंडेशन नहीं किया। पाला रूलर्स जो है उनका फाउंडेशन हुआ है आपका 750 एडी में, ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसे रूलर्स थे जहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक वे से पूरा, जैसे आज के टाइम पे आप अपने लीडर को वोट कास्ट करके चुनते हो, सेम वे में पाला रूलर्स के टाइम पीरियड में भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फाउंडर है वो है गोपाला, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट पाला किंग है और फाउंडर है इस डायनेस्टी के, एंड ही वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो ही बिल्ट उदंतपुरी, ठीक है, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी मेड बाय गोपाला। देन धर्मपाला वाज द अनदर इम्पोर्टेंट रूलर जो गोपाला के बाद आते हैं, धर्मपाला, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर करके बता रही हूँ बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। तो धर्मपाला का नाम जुड़ा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से। Dharampala made Vikramshila University and he was the successor of Gopala and he was a great ruler. He expanded the whole kingdom. Okay. और ये बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। देन आफ्टर धर्मपाला नेक्स्ट रूलर वाज देवपाला। देवपाला वाज आल्सो पॉपुलर रूलर, ठीक है। और इन्होंने अपना किंगडम को आसाम, उड़ीसा और कामरूप तक जो है पूरा फैलाया था। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज बनाई हैं इन रूलर्स ने। धर्मपाला ने विक्रमशिला के साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी बनाया था, दैट इज सोमापुरा। तो ये दो यूनिवर्सिटी का नाम धर्मपाल के साथ ऐड होता है एंड गोपाला के साथ उदंतपुरी का नाम ऐड होता है। नालंदा बनवाया नहीं गया था, नालंदा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर नालंदा वाज मेड बाय कुमार गुप्ता एंड ही बिलोंग्स टू गुप्ता डायनेस्टी, but renovation work was done by Dharampala, so that is connected with Dharampala. But here they asking about which is not founded by the Pala king. The answer is B. B is not founded by the Pala king. Okay. Next question, question number 8. The General Assembly consisting of tax-paying residents of ordinary Chola villages was known as. So it is very simple question if you always follow the history. तो चोला विलेजेस का जो एग्रीकल्चर है उससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, ठीक है। चोला एक ऐसा एम्पायर है, काफ़ी सक्सेसफुल रूलर्स हैं, काफ़ी सक्सेसफुल एम्पायर है एंड दे रियली एप्रिसिएट देयर एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसको काफ़ी ज़्यादा फेमस करने के लिए उसमें काफ़ी इन्होंने काम भी किया है। तो जनरल असेंबली की अगर बात की जाए तो इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उर, नगरम, सभा और कुर्रम, चारों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वे में भी आ सकता है। चोला एम्पायर में जो किंगडम है दैट वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, ओके, एंड एवरी मंडलम हैड डिवाइडेड इनटू अनदर वेलनुम और नाडूस, ठीक है। और नाडू के बाद नेक्स्ट आता है कुर्रम। कुर्रम इज अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। तो यहाँ दे आर आस्किंग अबाउट द जनरल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी चोला विलेजेस। सो ऑर्डिनरी चोला विलेजेस का जो असेंबली है उसको कहा जाता है उर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, आप मेंशन कर लीजिएगा, नगरम, कुर्रम और सभा, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बट चोला टाइम पीरियड का जो उर है दैट इज ऑर्डिनरी चोला विलेज रेजिडेंट्स, ठीक है, ये असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ओके, oh my God, very important question. What is Araghata? Araghata. This question has just came in set examination as well. So what is Araghata? It is a small tank, land tax, ocean wheel of irrigation,
or periodical market. So Araghata is connected with the Persian wheel of irrigation. Okay, it is very important tool. So Araghata or Araghati, both are same words, so don't be confused. Just take on this Persian wheel irrigation. Okay. Next question is question number 10. Aparajit Pracha was written by whom? Aparajit Pracha was written by whom? Dandin, Bhuvan Deva, Hemachandra और भोज. इन चारों का ही राइटिंग वर्क आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में. ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, so it means you will answer the question number 10. ओके, और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट पेपर्स रिलेटेड विद योर पब डेट एग्जामिनेशन. उसके बाद हम लोग पब डेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन. And I was very waiting for your responses because responses can give a strong, it's a back for us. ठीक है, थोड़ा सा ये फील कराता है कि यस वी हैव टू डू लिटिल वर्क मोर हार्ड. थोड़ा और मेहनत करना है स्टूडेंट्स के लिए. सो जस्ट पार्टिसिपेट द होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज रियली नाइस. और अगर आप लोग का रिप्लाई आता है देन विल मैनेज कि कैसे कैसे मॉक टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए. ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन. बाय, टेक केयर.